Good morning, students. Let's see our another chapter from Honeydew, The Great Stone Face 1. Introduction. The Great Stone Face 1 revolves around the old prophecy that persists in a valley which has the great stone face beaming over it. The old prophecy says that one day a man will come bearing likeness of the gold of the great stone face, and he will be the noblest and greatest of his time. One day, a mother tells her son Ernest about the prophecy, and since then, he eagerly awaits the arrival of the man. The story focuses on how the inhabitants of the village misjudged two men to be the ones spoken about in the prophecy, and how, even after waiting for so long, Ernest is still hopeful that the man will come. तो द ग्रेट स्टोन फेस वन जो है वो स्टोरी जो है पुरानी जो कथाएं जो है उनसे रिलेटेड है। दैट मीन्स कि एक वैली में जो एक ग्रेट स्टोन फेस रहा करता था। दैट मीन्स कि क्या था कि वहाँ पे सामने जो है एक माउंटेन हुआ करता था जिसमें जो है जो फेस जो है स्टोन पे जो फेस था वो एक आदमी से मिलता जुलता था। और बहुत से लोग जो थे पुराने गांव वाले वो ये कहा करते थे कि यहाँ पर जो है कुछ एक दो लोग आए हुए थे और उनमें से ही जो है ये ग्रेट स्टोन फेस जो है उनसे मिलता जुलता है। तो एक दिन जो है एक मदर अपने बच्चा जो अर्नेस्ट है उसको वो बोलती है कि वो जो है उस आदमी का वेट कर रहे हैं जिसका फेस ग्रेट स्टोन से मिलता जुलता है। और वहीं पर जो स्टोरी जो है पूरी कहाँ पे फोकस होती है तो विलेजर जो होते हैं विलेज वाले जो होते हैं वो मिसजज करते हैं दो आदमियों को लेकर, एक जो ये सारी कथाएं बताता है और दूसरा जो सुन रहे होते हैं उनको। और अर्नेस्ट जो है वो होपफुल जो है उस आदमी का आने का वेट ही करता रहता है। One fine afternoon at sunset, a mother and her little son sat outside their cottage as they discussed the great stone face. It was so big that it only required them to lift their eyes to be able to see it. Although it was miles away, it could still be seen clearly as the sunshine falling on it enhanced all its features. If you may ask, what really was the great stone face? The great stone face was a piece of art made by nature on the perpendicular side of a mountain by the natural peeling up of some huge rocks. The rocks were peeled in a way that when looked at from a particular distance, it seemed like a human face. But if the onlookers were to look at it from too close, they would lose the outline of the great face and would only see a pile of granite rocks. Surely, when looked at from miles away, as the clouds gathered around it, the great stone face looked alive. Many people believed that तो एक दिन दोपहर की बात है जब सनसेट होने ही वाला था तो अर्नेस्ट की माँ और अर्नेस्ट जो है वो घर के बाहर बैठे हुए थे और वो डिस्कस कर रहे थे ग्रेट स्टोन फेस के बारे में। और वो बहुत ही बड़ा दिखता था। अगर आप उसे आँखों से यानी आपको सिर्फ आँखों की ज़रूरत होती है उसको अच्छी तरह देखने के लिए, और अगर आप उसको बहुत दूर से देखोगे तो आपको वो क्लियरली जो है सनशाइन में दिखाई देगा। और उसके फीचर्स के बारे में जो है क्या बता रहे थे कि वो ग्रेट स्टोन फेस रियली क्या वैसा ही दिखता था। तो ग्रेट स्टोन फेस क्या एक पीस ऑफ आर्ट से बना हुआ था नेचर के थ्रू, जो कि परपेंडिकुलर साइड से देखा जा सकता था। माउंटेन पे एक हर्ज रॉक के थ्रू बना हुआ था। और
अगर आप थोड़ा डिस्टेंस से देखोगे, उसे पर्टिकुलर डिस्टेंस से देखोगे तो आपको उसमें ह्यूमन फेस दिखाई देगा, लेकिन आप जैसे उसके क्लोज जाओगे तो आपको सिर्फ वहाँ पर बहुत सारे रॉक्स दिखाई देंगे। तो जब भी कोई उसे दूर से देखा करता था और वो बादल में जब वो छुप जाया करता, जब उसके चारों ओर बादल हुआ करते थे, तो ऐसा लगता था जैसे ग्रेट स्टोन फेस जो है वो जिंदा है। बहुत से लोग बिलीव करते थे कि fatality of the valley is also because the kind and gentle face was constantly smiling over it. A mother and her little son, as was mentioned in the story earlier, sat outside their cottage staring at the great stone face and talking about it. The son's name was Ernest. As the great stone face smiled over him, Ernest described his desire to his mother to hear the great stone face talk. He thought that a man with such a kind appearance must have a very pleasant voice. He further expressed if he would ever find a man that looked like the great stone face, he would love him dearly. His mother replies and tells him that if an old prophecy were to come true, there may be a day where a man will come who will look exactly as the great stone face. Upon hearing this, Ernest questions his mother about the old prophecy. तो सब लोग क्या बिलीव करते थे, जो उस वैली में जितने भी लोग रहते थे उनका ऐसा बिलीव करना था कि वो फेस जो है बहुत ही काइंड और जेंटल है और कंटिन्यूसली वो स्माइलिंग करता रहता है। तो उसकी मदर और सन जो है, वो स्टोरी में जो मेंशन किया गया, पहले ही मेंशन किया गया है कि वो लोग बाहर बैठे होते हैं और वो लोग जो है ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे होते हैं और उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। और सन का नाम क्या होता है? अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट जो है वो उस ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा होता है और उसको ऐसा लग रहा होता है कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो उसकी देखकर स्माइल कर रहे हैं। तो अर्नेस्ट डिस्क्राइब करता है अपना डिज़ायर अपनी माँ की बातें सुन के कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस जो है उसके बारे में बात कर रहे थे, तो उसमें वो अपना डिज़ायर जो है रखता है कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस जो है वो मुझे देखकर स्माइल कर रहा है। और ऐसा भी सोचते कि एक दिन वो आदमी ज़रूर आएगा और उसकी आवाज़ जो है हम सुन पाएंगे, यानी जिससे वो फेस मिलता जुलता है। और एक और चीज़ जो एक्सप्रेस करते हैं वो ये है कि जिस दिन वो आदमी मिल गया उससे कि वो एक और चीज़ यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं कि उस आदमी को चुनना है जिसका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मिलता है, तो वो उसको हमेशा प्यार करेंगे। उनकी माँ जो है रिप्लाई करती हैं और उसे बताती कि अगर ये ओल्ड प्रोफेंसी अगर सच हुई तो वो दिन भी दूर नहीं जब वो आदमी आएगा और वो बिल्कुल उस ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा। और ये सारी चीज़ें सुनकर अर्नेस्ट के जो क्वेश्चंस थे उसकी माँ से, वो किसके ऊपर थे? तो ओल्ड प्रोफेंसी के ऊपर थे। Upon being asked, Ernest's mother told him the narrative that her mother had told her when she was even younger than little Ernest. It states that at some point in the future there would come a day when a child born near the place would look exactly like the great stone face upon becoming an adult. He would be destined to become the greatest and most selfless man of his time. Majority of the population's faith still lied in the prophecy while others considered it irrelevant. Whichever may be the case, the great man being talked about in the prophecy had not appeared till that time. Upon hearing this, Ernest clapped his hands above his head since he was filled with hope. He told his mother that he wished to live long
enough to see the noble man. Being a loving and thoughtful woman, his mother didn't wish to discourage him, even though his hopes were a bit unrealistic. तो यहाँ पे जो है अन्नेस के क्वेश्चन पूछने को उनकी माँ उन्हें बताती कि नैरेटिव बताती है कि जब वो उनसे अपने अन्नेस से भी ज़्यादा जब वो यंगर थी तब की बात है कि ऐसा कोई आदमी दिखता था। तो उसमें जो है कुछ पॉइंट में ऐसा भी कहा गया कि फ्यूचर में जो है एक दिन ऐसा आएगा कि जो बच्चा जो जन्म होगा उस प्लेस के आसपास वो बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा जब वो एडल्ट हो जाएगा। और एक कोई चीज़ जो देखने में आई कि वो जो इंसान होगा वो सेल्फलेस होगा और ग्रेटेस्ट होगा, यानी कि उसके अंदर किसी तरह की कोई भी गलत भावनाएं नहीं होंगी। और मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन की जो थी उनका ऐसा कहना था कि ये सारी चीज़ें गलत है, लेकिन कुछ लोग जो है इसे मानते भी थे कि नहीं ये सच है कि वो स्टोन जो है ग्रेट स्टोन फेस वो किसी से मिलता जुलता है गांव में। और इनकेस जो ग्रेट मैन जो है वो उसी चीज़ के प्रोफेंसी के बारे में ही बात किया करता था और वो कभी भी उस टाइम पे अपीयर्ड यानी कि आया ही नहीं कभी। ये सब सुनने के बाद अन्नेस जो है क्लैप करने लगा क्योंकि उसके अंदर जो एक होप जो है वो फील्ड हो गई थी। किस तरह की होप कि एक दिन जो है वो उस ग्रेट स्टोन फेस जैसे एडल्ट पर्सन को जो है देखेगा और फिर वो सबको बताएगा कि इसका फेस जो है इनका फेस जो है वो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। तो उनकी माँ जो है वो उसको विश तो करती है, लेकिन वो ज़्यादा जो है अंदर ही अंदर जो है उसे थोड़ा डिस्करेज होता है ये जानकर भी कि अगर वो विश नहीं करेगी, अगर वो उसके बेटे को एनकरेज नहीं करेगी तो उसके बेटे की होप जो है वो जो है सैडनेस में बदल जाएगी। और वो ये भी जानती थी कि शायद ऐसा कोई आदमी नहीं होगा क्योंकि आज तक उसने ऐसा आदमी कोई देखा नहीं था। लेकिन वो जो होप जो थी वो थोड़ी देर के लिए जो है अनरियलिस्टिक लग रही थी, थोड़ी सी अनरियलिस्टिक थी, क्योंकि अगर दूर से देखते तो एक फेस दिखता है किसी आदमी का, पास जाके देखो तो वो बिल्कुल स्टोन सी दिखते हैं, रॉक्स दिखते हैं, तो फिर वो सच नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो माउंटेन जो है रॉक के गिरने की वजह से ऐसा बना हो कि किसी का फेस दिखता हो, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी कि ऐसा हो। इसलिए वो जो है जो होप जो है वो अनरियलिस्टिक दिख रही थी कि उसमें कुछ भी रियल चीज़ें नहीं दिख रही थी। Thus she replied, "Perhaps you may." Since that day, Ernest always remembered the story his mother told him and would always think about it whenever he looked at the great stone face. तो उसकी माँ रिप्लाई करती है उसमें कि हो सकता है मे बी कि कभी ऐसा हो कि तुम्हारी जो होप है वो फुलफिल हो जाए और तुम उस आदमी को देख पाओ जिसका फेस ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। तो उसी दिन से जो अन्नेस जो है हमेशा उसी बात अपनी माँ की बोली स्टोरी को वो हमेशा याद किया करता था और वो हमेशा जो है ग्रेट स्टोन फेस की ओर देखा करता था। ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड ही स्टेड इन द log cottage where he was born. He was responsible and loyal to his mother. He would help her in doing a lot of things with his little hands and loving hearts. तो वो अगर चाइल्डहुड की बात करें अन्नेस की, तो वो कहाँ पे उसका बोर्न हुआ था, एक कॉटेज के अंदर बोर्न हुआ था और वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और लॉयर था अपनी माँ को लेकर, और वो हमेशा अपनी माँ की जो है हेल्प किया करता था बहुत सारी अपने छोटे छोटे हाथों से, और उसका हार्ट जो है यानी उसका दिल जो है बहुत ही प्यारा था। He was very obedient yet thoughtful as a child as he grew up to be low-key and quiet in his youth. तो जब वो छोटा था तो उसके थॉट जो थे वो बहुत ही ओबिडेंट थे कि जो वो चाहता था वो बनना चाहता था, और साथ ही साथ जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता गया तो वो एक जो है नॉर्मल सा लड़का हो गया। दैट मीन्स कि एक बहुत ही सीधा साधा वैसा और शांत रहने वाला होता गया। Ernest never had a teacher, so the great stone face acted as one in his life. तो अर्नेस्ट जो है उसको कभी कोई टीचर नहीं मिला था, वो कभी स्कूल नहीं गया था, तो ग्रेट स्टोन फेस जो है वही उसकी पूरी लाइफ में जो है उसका एक टीचर बन के आया था। Each day after
Winding up his work, he would stare at the great stone face for hours until he begins to think that those immersed futures recognized him and smiled at him kindly. तो जब भी वो अपना पूरा काम ख़त्म कर जब वाइंडिंग कर जब वो अपना पूरा काम ख़त्म कर देता था, उसके बाद वो जो है ग्रेट स्टोन फेस की ओर घंटों तक देखता रहता था और हमेशा वो जो है सोचा करता था उसके फीचर्स के बारे में कि हो सकता है वो जो है वो मेरे सामने देखकर स्माइल कर रहा है। दिस एनकरेज हिम, तो ये सारी चीज़ें जो है कि उसको ऐसा लगता था कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस जो है वो मेरी तरफ देख के स्माइल कर रहा है, तो उसको एनकरेज किया करती थी। और कि उसकी माँ ने जो उसको कहानी सुनाई थी बचपन में, तो उसको उसने बिल्कुल रियल मान लिया था। Around that time, a word was spread across the valley that the great man from the old prophecy that bore resemblance to the great stone face was about to make his appearance. Quite a few years earlier, a young man born in the valley had settled a distant seaport to become an established shopkeeper. His name was Gather Gold, and he had very good business skills. By that time, Gather Gold had become so rich that if he began counting his wealth, it would have taken him 100 years to do so. तो उसी समय जो है कुछ वर्ड जो है स्प्रेड हो गए थे वैली में कि ग्रेट मैन जो है और फफेंसी से जो है कि ग्रेट स्टोन फेस जो है उसकी अपीयरेंस हो चुके। दैट मीन्स के एक आदमी जो है गैदर गोल्ड करके जो कि उसी वैली में जन्मा, यानी कि अब लोग जो है वो ऐसा कहने लगे उनकी, जैसे माँ ने बोला था अर्नेस को कि जो भी उस वैली में जहाँ पे ग्रेट स्टोन फेस है वहाँ पे अगर कोई भी आदमी अगर जन्म लेता है तो फिर उसका फेस उसके जैसा ही दिखेगा। तो गैदर गोल्ड जो है वो भी उसी वैली में जो है बोर्न हुए थे और उसके बाद यंग मैन बनने के बाद जब वो उन्होंने अपना सी पोर्ट पे जो है एक बिज़नेस एस्टेब्लिश किया था एज अ शॉपकीपर के थ्रू, तो हर लोगों को ऐसा लगने लगा कि वो ग्रेट स्टोन फेस जो है वो बिल्कुल इसी गैदर गोल्ड से मिलता जुलता होगा क्योंकि उसका बोर्न जो है उसी वैली में हुआ है। और वो इतना रिच था कि अगर उसकी वेल्थ की बात की जाए, अगर उसकी काउंटिंग की जाए वेल्थ को, यानी कि वो कितना कमाता है, अगर उसकी काउंटिंग की जाए तो 100 साल लग जाए उसको काउंट करते करते, इतना उसके पास पैसा था, इतना वो रिच था। एट दैट टाइम ही थॉट ऑफ कमिंग बैक टू द वैली एज ही वॉन्टेड टू स्पेंड हिज डेज लास्ट डेज वेयर ही वॉज बोर्न। तो वो वापस से अपनी उसी वैली में आ गया था जहाँ पे उसका जन्म हुआ था, क्योंकि वहाँ पे वो अपने कुछ लास्ट समय जो है वहीं पे बिताना चाहता था। अपॉन हियरिंग दिस, अर्नेस्ट वॉज एक्सट्रीमली मूव्ड एट द आइडिया ऑफ सीइंग द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट मैन फ्रॉम द प्रोफेंसी इन हिज नेटिव वैली। और ये सारी चीज़ें सुन के अर्नेस्ट को ऐसा लगा कि उसकी माँ ने जो स्टोरी बताई थी वो बिल्कुल सच है और उस नेटिव वैली में जो गैदर गोल्ड जो आए हुए हैं तो मुझे उनको देखने जाना चाहिए, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट और नोबलेस्ट मैन है जो कि कहा गया था, मेरी मम्मी ने मुझे जो कहानी में सुनाया था कि वही जो है ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। वन डे व्हेन अर्नेस्ट वाज स्टेयरिंग एट द माउंटेन इमेजिनिंग दैट द ग्रेट स्टोन फेस लुक बैक एट हिम। एक दिन अर्नेस्ट जो है माउंटेन की तरफ देखे जा रहा था और इमेजिन करी जा रहा था कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो भी उसकी तरफ देख रहा है। He heard the noise of wheels as people announced the arrival of the great Gather Gold। तो तभी जो है उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी व्हील्स की, जहाँ पे लोग जो है अनाउंस कर रहे थे कि ग्रेट गैदर गोल्ड जो है वो आ रहे हैं। The noise of wheels was made by the carriage in which Gather Gold arrived। तो वो जो नॉइज़ जो थी, वो आवाज़ जो थी व्हील्स की, वो एक कैरेज की बनी हुई थी जिसमें गैदर गोल्ड जो है आ रहे थे। द कैरेज बीइंग ड्रॉन बाय 4 horses was stopped with the force around the turn of the road. One could partly see the face of
an old man with a yellowish skin tone from the open window. The people stared, shouting in excitement that the man exactly assembled the great stone face and that the old prophecy was indeed true. Now that they have the great man in the valley. तो वो जो कैरेज जो थी वो 4 हॉर्सेस जो थे उसको कैरी करके आ रही थी, उसको 4 हॉर्सेस जो कैरी करके आ रहे थे और वो सडनली जो है फोर्स के संग जो है रोड के टर्न होते वो रुक गई। तभी कुछ लोग जो है उस आदमी के फेस को देखने लगे जो कि येलो स्किन थी और हर कोई जो है ओपन विंडो से उनको देख रहा था और बहुत सारे लोग जो है वो एक्साइटमेंट में जोर जोर से चिल्लाने लगे कि वो ग्रेट स्टोन फेस जो है वो बिल्कुल इस आदमी के जैसे ही दिखता है। और जो ओल्ड प्रोफेंसी यानी कि जो पुराने लोग जो कह के गए थे वो बात बिल्कुल अब सच साबित हो रही थी कि वो वैली वाला इंसान जो है ग्रेट मैन जो है उस वैली का वो यहाँ आ चुका है। Ernest was unable to understand how people actually believed that the man assembled the great stone face like it was said in the prophecy। अब अर्नेस्ट जो है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग जो है एक्चुअली कैसे बिलीव कर सकते हैं कि वो ही आदमी का फेस जो है वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है जो कि पुराने लोगों ने कहा था उस समय। He got disappointed and turned away from the wrinkled, clever and unpleased face of the old man। तो वो डिसअपॉइंट हो गया और फिर वो वहाँ से चला गया उस आदमी को देखकर जिसका जो कि wrinkled, clever था और unpleased जिसका फेस था। He stared at the valley where he could imagine the great stone face asking him to have patience as the man in the prophecy will come। और वो वापस उसी वैली की तरफ देखने लगा और इमेजिन करने लगा कि ग्रेट स्टोन फेस जो है वो उसको बोल रहा है कि उसे पेशेंस रखना चाहिए, वो आदमी जो है उस प्रोफेंसी में वापस आएगा। A few years passed by. Ernest grew up to be a young man. He wasn't very famous amongst the people living in the valley. He lived a very simple life and the people of the valley found nothing extraordinary which was worthy of their attention of his lifestyle। Only one thing drew their attention towards him, that after finishing the day's work he would still stare at the great stone face। तो कुछ साल निकल जाने के बाद अर्नेस्ट जो धीरे धीरे बड़ा होता गया और वो एक यंग मैन बन गया, लेकिन वो इतना फेमस नहीं था उस वैली में कि लोग जो है उसे जान पाए और वो जो है सिंपल लाइफ जीता था अपनी और लोग जो है उसके आसपास के लोग जो है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अलावा वो कुछ नहीं जानते थे उसके बारे में और उसकी लाइफस्टाइल जो थी उस पर ज़्यादा अटेंशन भी वो दिया नहीं करते थे। लेकिन हाँ एक चीज़ जो है वो अटेंशन लायक ये थी कि लोग जो है जब भी वो अपना काम फिनिश कर देता था तो वो हमेशा ग्रेट स्टोन फेस की ओर देखा करता था और लोगों का ध्यान भी उसी की तरफ चला जाया करता था। People thought it to be his foolishness but also considered it to be acceptable because Ernest was delicate, hardworking, kind and also a good neighbor। तो लोग जो है हमेशा उसको बेवकूफ़ समझा करते थे, लेकिन वो एक और चीज़ कंसिडर ये भी करते थे कि अर्नेस्ट जो है वो बहुत ही डेलीगेंट है, हार्ड वर्किंग है, काइंड है और बहुत ही अच्छा नेबर भी है। द पीपल वर unaware that the great stone face acted as a teacher in his life। लेकिन लोग जो है वो अवेयर नहीं थे कि वो जो ग्रेट स्टोन फेस जो है वो अर्नेस्ट की लाइफ में एज अ टीचर आया था, उसी ने उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी। They didn't know that the sentiment which was expressed in it would expand Ernest's heart and fill it with emotions like sympathy deeper than others' hearts। तो लोग ये भी नहीं जानते थे कि अर्नेस्ट के दिल में जो है बहुत सारी चीज़ें जो है वो फील की थी उस ग्रेट स्टोन फेस ने।
तो वो क्या क्या थी, तो वो इमोशन से भरी हुई थी, जैसे सिंपैथी है जो कि बहुत ही डीपर थी। दूसरे हाथ की बात की जाए, दूसरे लोगों के हाथ की बात की जाए तो उससे कहीं ज़्यादा डीपर थी, क्योंकि वो बहुत ही इमोशन वाला इंसान था। The wisdom that he acquired from it was better from what any book could teach. तो उसके अंदर इतनी अच्छाई थी जो कि एक बुक भी नहीं सिखा सकती थी, एक बुक भी अच्छी तरह टीच नहीं कर सकती थी, इतनी अच्छाई उसके अर्नेस के अंदर थी। एंड द पीपल ऑफ द वैली वर अनअवेयर ऑफ इट, और पीपल जो थे उस वैली के वो उससे बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे। Even Ernest himself didn't know that the thoughts which came to him so naturally in the fields at the fireside were much more complex and superior than what others like him had. और ये बात अर्नेस्ट को भी नहीं मालूम थी कि जो थॉट्स जो उसके माइंड में आया करते थे वो नेचुरली हुआ करते थे, और जब भी वो बोला करता था बिल्कुल कॉम्प्लेक्स और सुपीरियर हुआ करता था, और जो कि दूसरे लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता था। A simple and uncomplicated soul, as he continued to be like he was when his mother first told him about the old prophecy. तो बहुत ही सिंपल और अनकॉम्प्लिकेटेड, यानी कि एक तरह से उसकी जो अंदर की जो सॉल जो उसका था वो बहुत ही प्यारा था, सिंपल था, और उसको उसने कंटिन्यू रखा था। क्यों? क्योंकि बचपन में जब उसकी माँ ने उसको वो सारी ओल्ड प्रोफेंसी के बारे में बताया था, तो उस रीज़न से उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आए थे। He still retained his extremely pure and good-looking face that looked down at the valley, trying to reason why it is taking so longer for the human embodiment of the Greystone face to come. और यही चीज़ें जो थी उसको एक्सट्रीमली प्योर और गुड लुकिंग फेस बना रही थी उसका। क्यों? क्योंकि वो हमेशा जो है उस वैली में देखता रहता था, ट्राई करता रहता था उस रीज़न से कि एक ना एक दिन जो है वो इंसान ज़रूर आएगा जिसका फेस ग्रेस्टोन फेस से बिल्कुल मिलता जुलता होगा। By that time, Mr. Gattergold, who was considered to be the man in the old prophecy, died and was buried. उसी समय मिस्टर गैडरगोल्ड जो थे, जिनको कंसिडर किया गया था कि उनका फेस जो है ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है, उनकी डेथ हो गई और उनको दफना दिया गया। बिफोर ही डाइड ही लॉस्ट all his wealth, which was considered to be the man essence of his existence. As all of his gold melted away, the people of the valley came to realization that there was actually no resemblance between। तो मरने से पहले उनकी जितनी भी चीज़ें जो थी, उनका वेल्थ जो था वो सब कुछ वो खो चुके थे। उनका जितना भी गोल्ड था उसको मेल्ट कर दिया गया था, और वहाँ के लोग जो पहले ऐसा रियलाइज़ कर रहे थे कि ये बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है इनका फेस, वो अब बिल्कुल भी वैसा नहीं दिख रहा था। बिटवीन द वन मर्चेंट एंड द मैग्निफिसेंट ब्यूटी ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस। तो एक वो इंसान जिससे अपना सब कुछ खो दिया, और एक मैग्निफिसेंट ब्यूटी जो दिख रही थी ग्रेट स्टोन फेस की, वो बिल्कुल भी मैच नहीं खा रही थी। Then came the news that one of the previous inhabitants of the valley became a soldier many years ago. After a lot of struggles and fighting, he rose to the rank of a commander who was quite famous. In fact, on the battlefield, he was known by the name of Blood and Thunder. As he grew old, he desired to return to his native valley. The inhabitants, his old neighbors, and their grown up children began the preparations to greet the acclaimed commander. A word was spread across the valley that the great likeness which was spoken of in the prophecy had appeared. The valley grew excited and
Even those who had never even thought of looking at the Greystone face before began spending hours looking at it just to anticipate how Jolner Blood and Thunder actually looked like. तो सडनली क्या हुआ, एक दिन के एक न्यूज़ फैल गई कि वैली में जो है एक सोल्जर आने वाला है जो कि बहुत सालों पहले जो है वो सोल्जर बना था और उसे बहुत स्ट्रगल किया, उसने बहुत फाइटिंग की और उसके बाद उसे कमांडर का रैंक मिला और वो बहुत ही फेमस हुआ क्योंकि वो हमारी वैली से रिलेटेड था। और बैटलफील्ड में जो है उसको किस नाम से जाना जाता था, तो ब्लड एंड थंडर के नाम से जाना जाता था। और अब जो है वो बुढ़ा हो चुका है और उसकी तमन्ना है कि वो वापस अपने नेटिव वैली में आना चाहता है। तो जितने भी उसके ओल्ड नेबर जो थे और ग्रो चिल्ड्रन जो थे वो भी उसके जैसा कमांडर बनना चाहते थे। तो एक वर्ड जो है, एक शब्द जो है वहाँ पे फैल गया कि उसकी अच्छाई देखकर, उसकी इतनी अच्छाई थी कि एक वर्ड फैल गया कि वो जो आदमी जो आ रहा है, जो कि सोल्जर जो है, जो कि बुढ़ा हो चुका है, वो उसका फेस जो है बिल्कुल उसका फेस जो है बिल्कुल ग्रेस्टोन फेस जैसा मिलेगा। लेकिन जब किसी ने उसको देखा ही नहीं है तो हर कोई कैसे ऐसा सोचने लग गया कि उसका फेस जो है ग्रेस्टोन फेस से मिलेगा और हर कोई जो है अब ग्रेस्टोन फेस की तरफ देखने लगा, अपना टाइम जो है वो स्पेंड करने लगा और एंटिसिपेट करने लगे, यानी सोचने लगे, ऐसा मानने लगे कि जो जनरल जो है ब्लड एंड थंडर वो एक्चुअली उसके जैसा ही दिखता होगा, ग्रेस्टोन फेस जैसा। तो पहले उन्होंने किससे कंपेयर किया था, तो गैदर गोल्ड से कंपेयर किया। अब उन्होंने जो है जनरल जो थे कमांडर उनसे कंपेयर करने लगे। On the day of General Blood and Thunder's arrival, everyone, including Ernest, left their work early to gather at the place where a feast had been prepared to welcome the General. तो एक दिन जब मालूम चला कि जनरल जो है ब्लड एंड थंडर आने वाले हैं तो हर कोई, अर्नेस्ट भी अपना काम पूरा करके जो है उस प्लेस पे पहुंच गए जहाँ पे वो आने वाले थे और उनका वेलकम होने वाला था। टू ग्रीट हिम सोल्जर्स वर मेड टू स्टैंड ऑन गार्ड, फ्लैग्स वर वेव्ड एंड द क्राउड shouted in excitement. Ernest stood far away and couldn't see the general himself, but he surely could hear several voices. तो जब उनको ग्रीट किया गया, यानी उनको वेलकम किया गया, तो सोल्जर्स जो है उनकी गार्ड में खड़े हुए थे, फ्लैग्स लहरा रहे थे और क्राउड जो है एक्साइटमेंट में चिल्लाने लगे जोर जोर से। अर्नेस्ट दूर था और वो जनरल को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन उनको कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वन मैन क्लेम दैट द जनरल हैड द एग्जैक्ट सेम फेस एज ही डांस्ड इन जॉय। एक आदमी जो है उसने क्लेम करना शुरू कर दिया सीधा कि जनरल का फेस जो है बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस जैसा मिलता है और वो फिर नाचने लगा। अदर सेड इट फॉर अ फैक्ट दैट ही लुक वंडरफुली लाइक द ग्रेट स्टोन फेस। तो दूसरे लोग भी यही मानने को तैयार हो गए कि इनका फेस जो है बिल्कुल सेम टू सेम ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखता है। अ वॉइस कुड बी हर्ड सेइंग दैट ही इज अनडाउटेबली the man from the prophecy as he is the greatest man of all ages। अब हर किसी की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही थी। अब किसी बात का ऐसा डाउट नहीं रहा था कि जो ओल्ड प्रोफेंसी ने जो कहा था कि एक जो है पूरे एक ग्रेटेस्ट मैन आएगा जो कि पूरे एजिस से मिलता जुलता होगा, जिसका फेस जो है बिल्कुल उस ग्रेट स्टोन फेस जैसा दिखेगा। बाय दैट मोमेंट, तो उसी मोमेंट के बाद अर्नेस्ट मैनेज टू ग्लेंस एट द जनरल्स फेस इन अ वे दैट ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस बिसाइड हिम। तब अर्नेस्ट जो है उसको मैनेज करने की ट्राई करने लगा कि वो जनरल का फेस भी देख सके एक साइड से और दूसरी जगह वो ग्रेट स्टोन फेस भी देख सके।
Ernest couldn't find any assembles between the two like the crowd announced. तो अर्नेस्ट ने जब ये देखा तो उन्हें कहीं पे भी ऐसा मैच नहीं दिखाई दिया कि ये जो दो लोग जो है यानी सॉरी ये जो दो चीज़ें जो है जो क्राउड जो अनाउंस कर रहा है वो बिल्कुल मिलती जुलती है. बट at the same time he could hear his heart tell him not to worry, as if it was the great stone face itself telling him that the man will come. लेकिन उसी समय जो है उसे अपने दिल से एक आवाज़ सुनाई दी कि उसे इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ग्रेट स्टोन फेस जो है वह खुद ही बताएगा कि वो आदमी जो है आने वाला है. दैट मीन्स उसका दिल अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वो जो ब्लड एंड थंडर कमांडर जो जनरल कमांडर जो थे उनका फेस उससे मिलता जुलता है. तो ये था फर्स्ट पार्ट जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी श्योर नहीं है कि एक्चुअल में जो ग्रेट स्टोन फेस जो है वो किससे मिलता जुलता है. तो यहाँ पे जो है वो डाउट जो है और जो कॉम्प्लिकेशंस जो है कि अभी भी समझ में नहीं आया कि उसका फेस किससे मिलता जुलता है. एक्चुअल में वो मेन कौन है, वो आदमी कौन है जिसका फेस बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है, वो हम देखेंगे सेकेंड चैप्टर में. थैंक यू.